जंग में लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मगरिबी बंगाल में चौथे मरहले के तहत पोलिंग के अमल की वोटिंग की रफ्तार तेज है। चौथे मरहले में हंगामे, तोड़फोड़ और तशद्दुद की खबरें भी लगातार मुख्तलिफ मुकामात से आ रही हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर पोलिंग के अमल में रखना डालने का इल्जाम लगा रही हैं। हुगली में लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला किया गया, मीडिया की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वहीं तूफानगंज और चांतला में बदइंतजामी का इल्जाम टीएमसी ने लगाया। मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो, रियासती वज़रा पार्थ चैटर्जी, अरूप बिस्वास और क्रिकेटर से सियासतदान बने मनोज तिवारी समेत 373 उम्मीदवारों की किस्मत का 1,15,81,000 से ज्यादा वोटर फैसला करेंगे। मगरिबी बंगाल में चौथे मरहले की पोलिंग के दौरान कूच बिहार में हुए तशद्दुद में तृणमूल कांग्रेस ने 5 अफराद की हलाकत का दावा किया है। तृणमूल कांग्रेस से इलेक्शन कमीशन से इस बारे में शिकायत की गई है और जांच का मुतालबा किया गया है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि महलवकीन पार्टी वर्कर थे। टीएमसी लीडर डोला सेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सेंट्रल पुलिस ने 2 मुकामात पर फायरिंग की जिसमें ये हलाकतें हुई। कुछ अफराद जख्मी भी हुए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सेंट्रल फोर्सेस ज्यादती कर रही हैं। গন্ডগোল ছিল না, ওরা বলছে যে এইখানে গন্ডগোল হচ্ছে, আমরা ভোট দিচ্ছিলাম, ওই আইসে শুরু করে দিয়েছে। দেখাবো, আমি সব আছে, ভিডিও আমার আছে, যেভাবে মারছে সবগুলোর আমার ভিডিও আছে। আমি ভিডিও করতেছিলাম তখন আমার এখানে মারছে। গুলি কারা চালালো? পুলিশ 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 কেন্দ্রীয় বাহিনী। হ্যাঁ, কেন্দ্র বাহিনী। প্রতিবাদ করতে গেছিল? কোনো প্রতিবাদ না, ওরা আইসে শুরু করে। ঘটনাটা শুরু হয়েছে, একটা বাচ্চাকে মারছে পুলিশ বাহিনী। তারপরে আমরা বলছি কেন মারলো, এই যে শুরু হয়েছে, মানে কোনোবার শুরু হইলো, তারপর ওরা গুলি চালানো শুরু করে দিল। আমরা কোনো মারধর করি নাই ওদেরকে। গুলি করছে যাকে তাকে লাগে নাই, আর অন্য লোককে গুলি লাগাইছে, চালাইছে, কিন্তু গুলিটা ও কেন্দ্র বাহিনী। যাকে লাগার কথা ছিল তাকে লাগে নাই। আর এরা তো মনে করো কোনো দোষী নিয়ে গেলে তো নির্দোষী। दादा मतलब बैटिंग ना देखी जाए दादा, ओ दादा हम दादा का नहीं लिया था, हाँ दादा। আদতে দেখুন, এটা একটা পরিকল্পনাভাবে আমাদের লোকজনকে মেরে ফেলা হয়েছে। এটা শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের জোরবাট্টি অঞ্চলে এই ঘটনাটা ঘটে। কত নম্বর? ওখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে, পরিকল্পিতভাবে, কোনো রকম কোনো প্রয়োজনা ছাড়াই পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে। ভোট দিতে গিয়েছিলাম, ভোট দিতে গিয়েছিলাম, ওরা সেনাবাহিনী গুলি করছে। যার কালেকশন করে আসছে, ওরা বলে বিজেপি কে ভোট না দিলে আমরা গুলি মারবো। তারপর এরকম করে আমরা টিএমসি কে ভোট দিতে চাইছিলাম, লাইনে দাঁড়াইছি, ওরা গুলি করছে। নরেন্দ্র মোদীর দালাল সেন্ট্রাল বাহিনী, ওই ইলেকশন কমিশনার অমিত শাহ, আমাদের ছেলেবেলেরা গুলি খেয়ে ওরা ভোট দিতে গিয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদী যে দালালরা, এরা গুলি করে মেরেছেন সেন্ট্রাল বাহিনী, ঠিক আছে? এদের আমরা শাস্তি চাই, ব্যবস্থা চাই। বিজেপি দালালি করছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে, অমিত শাহর দপ্তর থেকে নির্বাচন পরিচালনা করা হচ্ছে। আমাদের শক্তিশালী বুথগুলো সিআরপিএফ, সিআইএসএফরা জোর করে ভোট করাচ্ছে, গুলি করছে। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে বলে আমরা এখনো ভোটটা চালিয়ে যেতে পারছি। আমাদের কর্মী 4 জন মারা গিয়েছে, স্পটেড, একজন আছে। সিআইএসএফ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে, যেখানে দেখছে মানুষরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট করছে সেখানেই তারা গুলি করছে। নির্বাচন কমিশন বলছে যে সেখানে তৃণমূলের মধ্যে ঝামেলা চলছিল, 100 জন সেখানে চলে আসে নিরাপত্তার স্বার্থে, আত্মরক্ষার্থে। তাদের একদম ভুল, আত্মরক্ষার্থে নয়। আমরা বারবার 2-4 জায়গায় অভিযোগ করেছি, কোন সিআইএসএফ জওয়ান সহ সেক্টরের যারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর, তাদের সবার মোবাইল সুইচ অফ। যে জায়গাগুলোতে সমস্যা সেখানে না গিয়ে, যেখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভোট দিচ্ছে সেখানে তারা এই ধরনের একদম ভুল কথা। और चलिए सीधे रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज। शबाना,
जो खबरें आ रही हैं वो बेहद डिस्टर्ब करने वाली हैं। आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे, कहां पर इन हलाकतों की ये वारदात जो है ये पेश आई। अभी तक मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए है ना, सुबह से ही जब यहाँ इलेक्शन चौथे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे थे, मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर इस तरह की शिकायतें आ रही थी मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से कि उनके कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, एक खास पार्टी के लिए को वोट डालने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ऐसा इल्ज़ाम बीजेपी की तरफ से भी लगाया गया था, टीएमसी की तरफ से भी लगाया गया था। लेकिन बंगाल के कूच बिहार में जो हादसा पेश आया वो अफसोसनाक है, क्योंकि इस हादसे में 4 लोगों की जानें गई हैं। अब तक जो खबरें आ रही हैं कि 2 पार्टियों के बीजेपी और तृणमूल के लीडरान के दरमियान झड़प हुई, तशद्दुद हुए, उसमें एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए और 4 पार्टी के जो तृणमूल ये दावा कर रही है कि जो 4 लोग मारे गए हैं वो उनके पार्टी के लीडरान हैं। उन 4 लोगों की हत्या हुई है, मौत हुई है, जो अफसोसनाक है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जिस तरह से लोग बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं वो बहुत अहम है कि लोगों में वोट की तरह बेदारी आई है। लेकिन अगर वोटिंग के दिन इस तरह के तशद्दुद होते हैं और वोट डालने वाला ही अगर मारा जाता है तो हालात जो है वो कैसे होंगे इसका अंदाज़ा लगा सकती है, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं उसमें एक ऐसे नौजवान भी है जो फर्स्ट टाइम वोटर थे और कुछ देर पहले ही उन्होंने मीडिया से बात करी थी कि वो वोट डालने के लिए आए हैं, काफ़ी खुश हैं और बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी उम्मीदें थी कि इन मुद्दों पर वो वोट डालेंगे। और उसके बाद ही जब गोली चलती है तो उस यंग वोटर की, उस फर्स्ट टाइम वोटर की मौत हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अफसोसनाक है कि जो वोटर हैं, जो आम लोग हैं, जो नेताओं को सुनते हैं, जो उनकी बातों पर यकीन करते हैं, लेकिन वोट हासिल करने के लिए सियासत इतनी ज़्यादा अहम होती है कि सत्ता हासिल करने के लिए लोगों की जान की परवाह भी नहीं की जाती। तो ऐसे में अगर वोटरों के अंदर खौफ आता है और वो अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़ासकर जो चौथे मरहले के दौरान जो सबसे अहम चीज़ देखी गई वो ये थी कि ख़वातीन बड़ी तादाद में बाहर निकलकर वोट डाल रही थी, अपने बच्चों को गोद में लेकर वो कतारों में खड़ी थी। तो अगर इस तरह के हादसात होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ख़वातीन पर भी शबाना, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी रिपोर्ट तलब की गई है, साथ ही साथ लगातार जो वहां पर ऐनी शाहिदीन मौजूद थे उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की दिल्ली दफ्तर ने बंगाल इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब की है और तमाम मामलों की जो है तफसीली रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा गया है ना। आपको मालूम होगा कि कूच बिहार का ये वही इलाका है जहां आखिरी मरहले के, जहां चौथे मरहले के इलेक्शन के लिए जो आखिरी चुनाव तशहीर थी, जो इंतखाबी मुहिम थी, जो आखिरी दिन, उस दिन बीजेपी के सदर दिलीप घोष पर भी इसी तरह का हमला किया गया था, वो जख्मी हुए थे और इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी। मामला पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। और आज ऐसा जिस तरह से वहाँ तनाव का माहौल था उससे महसूस हो रहा था कि गड़बड़ की शिकायतें, हालांकि सुबह से ही तशद्दुद की शिकायतें आ रही थी, लेकिन जिस तरह से आनन फानन जो है वो गोलियाँ चली और उसमें 4 लोगों की मौत हुई, ये अपने आप में बहुत ही अफसोसनाक है। और साथ ही साथ कूच बिहार के दीनहाटा में भी इसी तरह का एक मामला पेश आया है, वहाँ भी झड़प हुई है और लोग जो है वो जो वोट डालने के लिए आए थे वो वापस अपने घर को चले गए हैं। शबाना, तो लगातार वहाँ के हालात पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ कोलकाता से हमारे साथी शबाना एजाज जो कि तमाम तर मालूमात फराहम कर रही थी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि टीएमसी लीडर डोला सेन ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। 1 নম্বর ব্লকে সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলিতে একজন নিহত হয়েছেন, 3 জন আহত হয়েছেন এবং তারপর মাথাভাঙার শীতলকুচি ব্লকে আবারও কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে 3 জন নিহত হয়েছেন এবং 1 জন আহত হয়েছেন। মাথাভাঙাতে তার মানে দুবার কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালিয়ে এ পর্যন্ত 4 জন নিহত, 4 জন আহত আমরা যতটুকু এখনো পর্যন্ত খবর পেয়েছি। আমরা বলতে চাই আজকে কেন্দ্রীয় বাহিনী যেভাবে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে কুচবিহারের মাথাভাঙায় মানুষকে মারছে, সাধারণ মানুষ মৃত্যুতে চলে যাচ্ছেন, মৃত্যু মুখে যাচ্ছেন এবং আহত হচ্ছেন,
এর জবাব কমিশন কে দেবে? বাংলার মানুষ নির্বাচন কমিশনকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে শোকজ করছে, জবাব কে দেবে? নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব চাই। এই আইন শৃঙ্খলার এই পরিণতি কেন হলো? আমরা বলতে চাই, এই রক্ত উপত্যকা আমার দেশ নয়, এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ নয়। আমরা শান্তি চাই। और नाज़रीन,